Hello everyone, welcome back to my channel School Guide to Home Tuition. Today is our topic on English textbook, that is Gulmohar 9th edition and written by V. Shashi Kumar. Okay, before continue it, let me tell you one thing. कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें से कमेंट सेक्शन में आया था कि अब अगर वीडियो को मल्टी लैंग्वेज में करोगे तो अच्छा है। तो मल्टी लैंग्वेज मुझे तो 3 लैंग्वेज आती है। आई नो इंग्लिश एंड हिंदी आती है और बंगाली इज़ माई मदर टंग। सो आई थिंक आज मैं जो कंटेंट पढ़ाने जा रही हूँ तो too big too small, it is the first chapter of it, and the textbook contains 12 of chapters. Few chapters contain 2 of its part. One is prose, another is poem part, but our first topic is too big too small, that is only prose. So let's continue it with it. And I think the topic is too big too small. If I will understand it by two or three of language, like multi language, Hindi, English or Bangla, I think এটা ভালো হয়। অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হয়, মানে সব সময় যদি ইংলিশ হয় তা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রোজটা যদি ভালো করে পড়া হয় তাহলে ইজিলি বোধহয় কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সলভ করা যাবে যদি ভালো করে বোঝা হয়। সো ভালো করে বোঝা হলে তো ভালোই হয়। সো আগে হচ্ছে এটা ইংলিশে পড়বো, তারপরে বাই হিন্দি অ্যান্ড বাই বাংলা এটাকে কনভার্ট করব। তাহলে বাই মাদার টাং বা বাই যার মাদার টাং যা হিন্দি বাংলা তাই ইজি হবে বুঝতে। সো লেটস স্টার্ট। टू बिग टू स्मॉल। टू बिग मीन्स बहुत बड़ा और स्मॉल छोटा, खूब छोटो खूब बड़ो, सॉरी खूब बड़ो खूब छोटो। First is I can't lift you up, Shanu says Ammi. I can't, আমি পারছি না তোমাকে তুলতে। লিফট মানে তোলা, লিফট ইউ আপ তোলা। শানু আম্মি বলল। ইউ আর টু বিগ, তুমি খুবই বড়। शानू मैं तुमको उठा नहीं सकती हूँ, अम्मी ने कहा, क्योंकि तुम बहुत बड़ी हो। यू कांट वॉक टू स्कूल अलोन, शानू सेज अब्बू। अब्बू मीन्स पापा, फादर ने कहा कि तुम स्कूल अकेले नहीं जा सकती हो, यू आर टू स्मॉल। तुम स्कूल अभी अकेले जाने के लिए लायक नहीं हो, तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो একা যেতে পারবে না, আরেকজনকে লাগবে, এরকম একা তুমি স্কুল যাওয়ার জন্য এখন উপযুক্ত না। ইউ কান্ট স্লিপ দ্য বেবিজ কট, শানু सेज दादू। दादू ने, पिक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल है। दादू ने कहा, शानू तुम ये जो बेबी का कॉट है, कॉट मीन्स खाट, खटिया, तो इसमें तुम सोने के लिए अभी बहुत बड़ी हो गई हो। ये छोटी लोगों की, छोटी जो बच्ची है, बच्चा और बच्ची, এদের শোয়ার জন্য। সো ইউ আর টু বিগ, তুমি এখানের জন্য অনেকটা বড়। ইউ কান্ট ক্যারি দ্য বেবি টু দ্য পার্ক, शानू सेज दादी। दादी ने भी क्या कहा? दादी मीन्स दीदा बोल, তুমি বেবিকে পার্কে নিয়ে যেতে পারো না, কারণ তুমি নিজেই অনেক ছোট, ইউ আর টু স্মল।
এতটাই ছোট যে তুমি আরেকটা বাচ্চাকে নিয়ে পার্কে যেতে পারবে না। तुम इतनी छोटी हो कि और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके तुम पार्क नहीं जा सकते। आई होप ये स्टैंजा समझ आया सबको। अच्छा, नेक्स्ट स्टैंजा। शानू इज पजल्ड। पजल मीन्स क्या है? पजल मीन्स पजल हो गया मीन्स अरे हिंदी में ऐसे कहते हैं मेरा तो सर चकरा रहा है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज्ड। और বাংলা হচ্ছে অবাক হচ্ছি বা কিছুই বুঝতে পারছি না, কি হতে পারে, নট শিওর অ্যাবাউট ইট, নট শিওর অ্যাবাউট ইট, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पजल। टू बिग टू स्मॉल, ये पजल क्या है? पजल किसको लेकर पजल है ना? ये जो इतना बड़ा टॉपिक हुआ ना, बिग और स्मॉल के लिए, तुम ये काम करने के लिए छोटी हो, तुम ये काम करने के लिए बड़ी हो, তুমি এই কাজটা করতে পারবে না, ওই কাজটার জন্য তুমি উপযুক্ত নও, সেটার জন্য বলছে পাজলড। সেই কথাগুলোর জন্য পাজলড হয়ে আছে। হাউ ক্যান শি বি বোথ, কি করে হয়, নয় ছোট হবে নয় বড় হবে, সে দুটো কি করে একসাথে হতে পারে। টু বিগ টু ওয়্যার হার ওল্ড পিঙ্ক ফ্রক। নেক্সট বলছে যে সে কিন্তু বড় তার পিঙ্ক ফ্রকটার জন্য, বাট टू स्मॉल टू मेक डोसास ऑन द स्टोव। उसकी एक पिंक फ्रॉक है, तो पिंक फ्रॉक पहनने के लिए वो बड़ी है, टू बिग। और बट और एक है, ये जो डोसा है ना, ये स्टोव में मम्मी डोसा तैयार कर रही है, डोसा के स्टोव के पहुंचने में वो अभी छोटी है। फिर से कन्फ्यूजन, फिर से पजलिंग, फिर से पजल्ड हो गई। तो ধোসার পৌঁছানোর জন্য ছোট, ড্রেসটার জন্য বড় হয়ে গেল। টু বিগ টু ক্লাইম আপ দাদুস ব্যাক, বড় হয়ে গেছে, ওর ওয়েটটা দাদু নিতে পারবে না, তাহলে দাদুর করার জন্য অত ছোটই নেই, বাট বড় হয়ে গেছে। বাট টু স্মল টু ক্যারি দ্য বেবিজ অন হার্স। दादू कंधे में उठाने के लिए वो अभी बड़ी हो गई है, बट और एक बेबी को कैरी करने में, ये उसके ब्रदर और सिस्टर कुछ भी है, बाद में पता चलेगा शायद, तो उसको कैरी करने के लिए छोटी है, और दादू को बैक में कंधे में उठने के लिए बड़ी हो गई है। দাদুর পিঠে ওঠার জন্য বড় হয়ে গেছে, কিন্তু আরেকটা বাচ্চাকে কোলে নেবে বা ক্যারি করবে সেটার জন্য ছোট আছে। नेक्स्ट पेज। व्हाट एम आई राइट साइज फॉर? शानू वंडार्स। আমার জন্য কোন সাইজটা ঠিক, शानू এটা ভেবেই অবাক হচ্ছে। शानू परेशान हो रही है और सोचने में बहुत खोई हुई है और अमेज्ड हो रही है। वंडर मीन्स लाइक थिंग्स अबाउट द व्हाट इज़ द आंसर, परफेक्ट आंसर। परफेक्ट आंसर के लिए वो सोच रही है कौन सी साइज़ ठीक है उसके लिए, कोई बड़ी बोल रही है, कोई छोटी बोल रही है। तो अम्मी स्माइल्स एंड सेज यू आर जस्ट बिग इनफ टू गो टू स्कूल। अम्मी हंस के बोल रही है, अम्मी मीन्स माँ, माँ हेसे बोलছে তুমি स्कूल जाওয়ার জন্য एकदम ठीक, तुम स्कूल जाने के लिए ठीक हो गई हो, बड़ी हो गई हो, ठीक है, स्कूल जाने के लिए तुम लायक हो ऐसे। एंड यू आर जस्ट स्मॉल इनफ टू कैरी यू ऑन माई शोल्डर सेज अब्बू। और तुम बहुत छोटी हो, टू कैरी ऑन माई शोल्डर,
तुम मेरे कंधे चढ़ने के लिए छोटी हो। तो ये किसने कहा? अब्बू ने। अब्बू मीन्स पापा, फादर। फादर ने ये कहा, यू आर जस्ट बिग एनफ टू टेक माई मॉर्निंग वॉक सेज दादू। तुम बड़ी हो गई हो किसके लिए ना? टेक मी फॉर मॉर्निंग वॉक्स, मुझे मॉर्निंग वॉक में लेके जाने के लिए। তুমি বড় হয়ে গেছো কিসের জন্য না? দাদু বলছে এটা কিসের জন্য না? তুমি আমাকে মর্নিং ওয়াকে সকালবেলা নিয়ে যাবে, সেটার জন্য তুমি বড় হয়ে গেছো। অ্যান্ড ইউ আর জাস্ট স্মল এনাফ ফর মি টু টেল স্টোরিজ টু সেজ দাদি। দাদি মানে দিদা। দিদা বলছে যে তুমি বড় হয়ে গেছো না, সরি, তুমি এখনো ছোট আছো কি না আমাকে তুমি গল্প বলার জন্য। এটা দিদা বলছে। दादी बोल रही है तुम अभी भी छोटी हो तो मुझे स्टोरी बोलने के लिए। एंड यू विल ऑलवेज बी परफेक्ट साइज फॉर दिस। तुम ये सब कुछ के लिए, ये जितना भी मैंने कहा, ये सब कुछ के लिए परफेक्ट साइज हो। क्या क्या परफेक्ट साइज उसने क्वेश्चन किया, तो घर वाले ने ये सब एक्सप्लेन किया। ये सब करने के लिए तुम ठीक हो। दे ऑल से एंड गिव हर वार्म वंडरफुल हग। घर में जब कहा, सॉरी, सानू ने जब क्वेश्चन किया जे मैं किसके लिए छोटी हूँ, किसके लिए बड़ी हूँ, ठीक से बताओ। तो उसने कहा कि उसने, अम्मी ने कहा, दादू ने कहा, दादी ने कहा, अब्बू ने कहा, सब लोगों ने ही कहा कि तुम इसके लिए हो, इसके लिए हो, इसके लिए हो, ये तुम्हारा परफेक्ट साइज़ है। फिर ये सब बोल के तब भी कंफ्यूज थी, फिर भी उसको क्या मिला? एक हग मिला, अच्छे से प्यारी सी हग। এত কিছু বলার পর তখনও যখন সে কনফিউশন একটুও কাটেনি, হালকা কাটলেও এখনও কনফিউজড বোঝাই যাচ্ছে, তারপরে সে কি পেল না? একটা সবার কাছ থেকে, ফ্যামিলির কাছ থেকে হাগ পেল, ভালোবাসা পেল, আদর পেল। দিস ইজ দ্য প্রোজ, অল অ্যাবাউট ইটস, অ্যান্ড হিয়ার দ্য ওয়ার্ড মিনিং, ওয়ার্ডস, and here is the exercise of the prose. So you have to just read it and learn by heart for word meaning, nothing is about it. And here is the exercise. Let's solve the exercise. Okay, wait a minute. Already some solved, but answer is not be solved. Here I solved answer with brief explain. So अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, यस, हम लोग समझ ही गए। समझने के बाद বোঝার পরে আমরা আসছি कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ टू बिग और टू स्मॉल। ये जो क्वेश्चन है अप टू 6, ये क्वेश्चन को टू बिग और टू स्मॉल से फिलअप करना है, ठीक है। शानू को लेके सब कुछ है, शानू के नहीं सब कुछ। तो शानू इज डैश टू स्लीप इन बेबी स्कॉट। तो क्या हुआ था? बेबी स्कॉट मीन्स बच्ची की जो छोटी सी खटिया है, वो खटिया में सोने के लिए बच्चा की खट्टा शोर जो सानू की टू स्मॉल और टू बिग, टू स्मॉल और टू बिग, टू बिग, बड़ी हो गई है। सो राइट इट डाउन, टू बिग। Okay, after that
walk to school alone. अकेले स्कूल जाने के लिए बड़ी है और छोटी है? छोटी है, अभी पापा ने कहा था। तो একলা স্কুল যাওয়ার জন্য ও কি হবে? Too small. Okay, too small. Number 3 is to carry the baby. एक बच्ची को होल्ड करने के लिए, बच्ची को कैरी करने के लिए, একটা বাচ্চাকে ধরার জন্য বা করার জন্য সে কিন্তু too small. Next is number 4, to make dosas at the stove. स्टोव के पास जाने के लिए और डोसा तैयार करने के लिए, वो छोटी है बड़ी है? डोसा तैयार करने के लिए टू स्मॉल. ধোসা তৈরি করার জন্য ও কিন্তু ছোট. Number 5, to wear her old pink frock. ओल्ड पिंक फ्रॉक के लिए वो बड़ी है, अभी भी बड़ी है. टू बिग. ओके. डैश. टू क्लाइम अप ऑन दादूज बैक. टू क्लाइम अप ऑन दादूज बैक के लिए बड़ी हो गई है, दादू ने कहा था. टू बिग. Okay, let's solve it. We solve it up to 6. After that, answer these questions. Okay. Why Shanu is puzzled? शानू क्यों puzzled है? क्यों उसको समझ नहीं आ रहा है what right what wrong क्या है ये सब? चलिए इधर ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ते हैं. ऑप्शन को देखा जाए. बिकॉज सी कैन नॉट वॉक टू स्कूल अलोन. सानू पजल क्यों है? और स्कूल जाने के लिए स्कूल नहीं जा सकती चल के, इसके लिए क्योंकि हेटे स्कूल যেতে পারবে না তার জন্য সে পাজল. নাকি অপশন বি, because अम्मी cannot lift her up anymore. ना कि अम्मी मदर और माँ उसको उठा नहीं सकती, ओके মানে তুলতে পারবে না তার জন্য. और नंबर सी, because she does not know if she is too big or too small. নাকি এটার জন্য যে সে জানে না সে ছোট আছে না বড় হয়ে গেছে. और ये उसको पता नहीं चल रहा है कि वो छोटी है ना बड़ी है, समझ नहीं आ रहा है. तो आंसर इज ऑप्शन सी. सो राइट इट डाउन. ऑप्शन सी, because she does not know she does not know if she is too big or too small. If she is too big or too small. Okay, finish. Number 2. Name any 3 things to Shanu is the right size for. Suppose
এতক্ষণ ধরে শুনছি সব কিছুর জন্যেই শানু ছোট নয় বড়, তা কী এমন তিনটে জিনিস ছিল বা তিনটে জিনিসের নাম বলো যেটার জন্য শানু ছিল রাইট সাইজ, মানে ঠিকঠাক, একেবারে ঠিকঠাক, ঠিক একদম ঠিক। সেই তিনটে কী কী? सो আমরা এখানেই পড়েছি, आंसरটা एखनी होगा। सो हमने यही पढ़ा था, वो सब कौन सी राइट है, ये जो लाइन है ना, व्हाट एम आई राइट साइज फॉर, शानू वंडर्स। अम्मी smiles and say you are just big enough to school, that is the point number 1, and you are just small enough to carry me on my shoulder, ये है point 2, और ये 1 दे दो 3, you are just big enough to take me for morning walks says दादू। तो ये 3 पॉइंट्स आ गया, এই তিনটে পয়েন্ট দিলেই হবে। জাস্ট এখান থেকে ফার্স্টে আমি দিয়ে স্টার্ট করব যে দ্য 3 থিংস আর বলে জাস্ট ওই তিনটে পয়েন্ট। দ্য 3 থিংস আর বলে জাস্ট এই তিনটে পয়েন্ট স্টার্ট হবে ইউ থেকে। ফার্স্ট নাম্বার 1 নেবো, নাম্বার 1 দিয়ে ফার্স্ট এটা লিখবো এখান থেকে, ইউ আর দ্য জাস্ট বিগ, ফার্স্ট এটা। सेकंड এটা यू आर থেকে स्टार्ट होगा, यू आर से स्टार्ट होगा इतना तक। थर्ड भी इतना तक ही होगा, यू आर से स्टार्ट होगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला यू आर तक स्टार्ट होगा, यू आर से स्टार्ट होगा अप टू लाइन तक। ये आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं ये कॉपी नहीं कर रही हूँ टाइम कंज्यूमिंग के लिए। ओके, तो शायद आपको समझ आ गया, সবাই বুঝতে পেরেছো যে কোনটা বলছি। জাস্ট এগুলো লেখার দরকার নেই, জাস্ট অ্যান্ড ইউ আর থেকে লিখবে, ইউ আর, এগুলো কিছু লেখা দরকার, ইউ আর জাস্ট এরকম পয়েন্ট করবে, দ্য 3 থিংস আর বলে তিনটে পয়েন্ট জাস্ট। ওকে, নেক্সট টপিক নাম্বার 3, you will always be the perfect size, for this they all say। first question is, if this line is here or this line এই लाइन থেকে क्वेश्चन এসছে, ये लाइन उठा के ये 3 क्वेश्चन कर दिया। हु आर दे, सबको पता है दे कौन है, दे आर अब्बू, सॉरी दे आर फर्स्ट है अम्मी अब्बू दादू एंड दादी। so we write it down, who are they, they are अम्मी, next is अब्बू, next is दादू and दादी। okay, finish number A portion। let's continue with the second portion is B। see this B, what will Shanu always be perfect size for? शानू किसके लिए एकदम से परफेक्ट है, बता सकते हो कोई? शानू किसके लिए एकदम से परफेक्ट है? एक ही क्वेश्चन है, ये वाला था 3 पॉइंट्स लिखने के लिए, एक ही क्वेश्चन है, एकदम से परफेक्ट है। परफेक्ट साइज यहाँ पर था, राइट साइज यहाँ पर है, परफेक्ट। परफेक्ट के ऊपर कोई नहीं है, परफेक्टर ऊपर क्यों ना, परफेक्ट इज परफेक्ट, परफेक्टर ऊपर ये राइटও আসবে না, রাইট মানে ঠিকঠাক,
परफेक्ट माने निखुत, एकदम ठीक, एकदम से ठीक। परफेक्ट के आगे कोई नहीं, परफेक्ट के सब पीछे है। परफेक्ट क्या है? द लास्ट लाइन इज द परफेक्ट। 10 लाइन परफेक्ट क्या है? अ वंडरफुल हग। ये वंडरफुल हग के लिए शानू एकदम से परफेक्ट, एकदम से परफेक्ट है। किसके लिए? वंडरफुल हग के लिए। ये सब है राइट साइज, ये है परफेक्ट। सो राइट इट डाउन हियर। व्हाट विल द शानू ऑलवेज परफेक्ट साइज फॉर? तो द आंसर इज शानू विल में क्वेश्चन किया है तो हम ये विल में ही आंसर देंगे। शानू विल ऑलवेज बी द परफेक्ट जैसे क्वेश्चन किया हम भी ऐसे ही आंसर लिखेंगे। नो नीड टू राइट एक्स्ट्रा थिंग्स, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट राइट। ओके, always be perfect for a wonderful hug. Okay, always be perfect on a wonderful hug. Okay, next question. How do you think this makes Shanu feel? तुम्हें क्या लगता है বা তোমার কি মনে হয় যে দিস মেক শানু ফিল, শানু এটার জন্য কি ফিল করে? তাকে যে সবাই হাগ করছে, ওয়ান্ডারফুল হাগ করছে বা এত কথা বলছে, করছে, এত কথা বলার পরেও এই যে পারফেক্ট সাইজ এসে গেল যখন, তখন শানু কি ফিল করছে, তখন শানুর মনে কি হচ্ছে? সো হিয়ার দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্সার ইজ, ইট ইজ আ टोटली सेल्फ थिंकिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन टोटली तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा। क्रिएटिव राइटिंग, दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड एज क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग के पार्ट है, तो নিজে থেকে লিখতে হবে। হাউ ডু ইউ থিঙ্ক, কোশ্চেন করছে তোমাকে, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক, তোমার কি লিখতে হবে? তাহলে আমি লিখবো বা আমাকে লিখতে হবে, সরি ওকে, হাউ ডু ইউ থিঙ্ক? আই থিঙ্ক, ইউ আমাকে জিজ্ঞেস করছে, আই থিঙ্ক দিস মেক্স Shanu, this makes Shanu feels very lovely and joyful. That is a creative writing question. Already told you, আগেও বলেছি এটা ক্রিয়েটিভ রাইটিং কোশ্চেন। সো এটা দিয়ে কিন্তু লেখা যেতেই পারে। কেউ যদি লেখে লাভলি অ্যান্ড জয়ফুল না লিখে লাভলি অ্যান্ড পিসফুল, অর অনলি লাভলি, অর সামথিং, অন্য কিছু লিখলেও হবে, যা খুশি, কোনো অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ রাইটিংয়ের কোশ্চেন। ওকে, তো নেক্সটে আসা যাক। নেক্সট কি বলছে, এবার গ্রামার পোর্শনে চলে আসছে। ग्रामर एंड यूजेस, ठीक है। ग्रामर में ये दे दिया है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन में सिंगुलर प्लूरल, ये कॉट, बेबी का कॉट, यहाँ से आ गया कॉट्स, एक कर दिया, वन इज़ डन फॉर यू, another rest of another one is here। सिंगुलर प्लूरल, तो ए बिन से क्या होगा प्लूरल में? यहाँ पर दे दिया है 1 2 3 3 बिन्स।
BINS। अच्छा, ए स्कूल से क्या होगा, टू स्कूल्स। यहाँ पर स्कूल का पिक्चर है ऑलरेडी। ओके, सो राइट इट डाउन, write it down it here। so यहाँ पर है ए बिन, तो प्लूरल में होगा 3 बिन्स, BINS। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्कूल। स्कूल स्पेलिंग इज SCHOOL, स्कूल। टू schools, just adding SCHOOLS, schools। Okay, another one is, there is a picture of cycle, the cycle it should, cycle, bicycle, 2 wheels are, so a bicycle, 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 2 bicycles, so BICYCLES, bicycles। Okay, next one is book, is a picture of book, ছবিটা কার, বইয়ের, কিতাব কি है, so a book। many books already here, it is done। so next one is a flower, in plural many flowers, a flower, many flowers, FLOWERS, flowers। all are adding s, we convert it into plural forms। সব জায়গায় কিন্তু এস বা দিয়ে হবে না, অনেক জায়গায় ইএস আছে, এ আছে, সেটা অনেক নিয়ম আছে সিঙ্গুলার টু প্লুরালে। সে সিঙ্গুলার প্লুরালে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস পরে দেব একদিন, बट आपातत तो टेक्स्ट बॉय जेटा আছে সেটা कंप्लीट कर दिलाम, टेक्स्ट बॉय में जितना था कर दिया। और एक दिन और एक वीडियो में मैं डाउट क्लियरिंग सिंगुलर प्लूरल की क्लासेस दूंगी, तो उसमें शायद क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलो, तो इतना तक तो हमें हो गया, थोड़ा और भी थोड़ा ग्रामर पोर्शन बाकी है, देखते हैं आगे क्या है। ओके, ये है क्या, ये कुछ नहीं, ये जस्ट इसका